اسلام آباد میں اکرم درانی کی زیر صدارت رہبر کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس سے قبل مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رہبر کمیٹی سے بہت اچھی توقعات ہیں۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں گی۔ عام آدمی رو رہا ہے اور ملک کا ستیہ ناس کر دیا گیا۔ عوام کو اس نالائکی اور تباہی سے کیسے نجات دلائیں؟ اپوزیشن مل کر سوچے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جی بہت اچھی توقعات ہیں، ساری اپوزیشن مل کر بیٹھے گی اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، جو تباہی اور بربادی عمران احمد نیازی کی حکومت نے عوام پر اور ملک پر مسلط کی ہے، جس میں عام آدمی کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ عمران احمد نیازی جب اپوزیشن میں تھے تو دو لفظ ان کے بہت مقبول تھے اور بہت ان کی زبان پہ ان کا ورد جاری ہوتا تھا، ستیہ ناش اور بیڑا غرق۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی حکومت نے پاکستان کے عوام کا اور معیشت کا جس طرح ستیہ ناش اور بیڑا غرق کیا ہے، اس کی ہماری تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ 2 سالوں میں ایک ہستی بستی چلتی ہوئی معیشت کو نہ صرف کھڑا کر دیا ہے بلکہ تباہ کر دیا ہے۔ تو ہم سب مل کر سوچیں گے کہ ہم ملک کو، عوام کو اس تباہی سے، اس نالائکی سے، اس ناکامی سے جو ہم پر مسلط کی گئی ہے، کیسے نجات دلائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی وزارت قانون کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے بھارت کو کلبھوشن یادو تک کونسلر رسائی کا ایک اور موقع دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالتی احکامات سے متعلق استفسار پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی حکومت کو تاحال بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وفاق نے سیلاب پر سیاست اور بیان بازی کی۔ وفاق کو چاہیے تھا اسٹیک ہولڈر سے مل کر فوری کام کرتے۔ سب کو مل کر کراچی اور سندھ کے عوام کی داد رسی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کراچی میں کل صبح سے لے کر رات 12 بجے تک کراچی کے گلیوں اور سڑکوں میں ہم پھرتے اور عوام کو ملتے رہے۔ وزیر اعظم تو کہیں نظر نہیں آیا، ان کی حکومت تو کہیں نظر نہیں آئی۔ بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک تباہی مچائی۔ سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے۔ جو بدقسمتی کی بات ہے، وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا، سیاست کی گئی۔ جو وزیر اعظم عمران خان نیازی کہہ رہے ہیں، یہ کون شخص یہ بات کر رہا ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی زبان میں بات کر رہی ہے؟ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، جب ہم کراچی کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی آج تک وہ کراچی نہیں گئے، اور جب کراچی کی ان کی ناکامی کی بات کریں کہ یہ این او مانگتے ہیں، جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یہ این او مانگتے ہیں۔ براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی تکلیف آسان کی جائے۔ ان ٹرمز آف میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 42,000 ٹینٹ سٹاک میں موجود تھے۔ ہم پی ڈی ایم اے میں ایک سٹاک رکھتے ہیں، وہ تقریباً اب 0 پہ آ گئے ہم، اس لیے کہ ریکوائرمنٹ ابھی بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اور پروکیور کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو موٹا میرے پاس ہے نمبرز، دادو میں جوئی کے علاقے میں 6,000 ٹینٹس دیے تھے ہم نے، یامشورو میں جو ہے وہ 1160 ٹینٹس دیے تھے۔ اس کے بعد 5,400 میرپور خاص میں، 3,650، 5,400 ماسکیٹو نیٹس ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، انہوں نے پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے۔ 4,000 ٹینٹس عمرکوٹ میں دیے ہیں، 6,000 ٹینٹ سانگڑ میں، اور 6,000 بدین میں، 1,770 تھرپارکر میں، 2,000 کے قریب ٹنڈو محمد خان میں، اور یہ ابھی آن گوئنگ ہے، اور یہ تو جو پہنچ چکے ہیں ادھر۔ اس کے علاوہ بھی این ڈی ایم اے نے بھی ہمیں دیے ہیں تقریباً 2,000 ٹینٹس این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں ملے ہیں جو ہم نے دیے ہیں۔ 3,780 تارپولین شیٹس ہیں یہ واٹر پروف جو کہ انہوں نے دی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ٹینٹس کے اندر جہاں پہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو کھانا پہنچائیں، اس میں بھی فلاحی ادارے، لوکل لوگ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اور یہ پہنچا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی شدید قسم کی آفٹر کووڈ اور آپ کی لوکسٹ
ये एक और इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से आया। अभी कुछ दिनों से 4-5 दिन से बारिश की हुई है। इस वक्त कोई इमीडिएट फोरकास्ट नहीं है बारिश की, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में, सवात में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में भी इस वक्त शदीद बारिश आज के दिन थंडर स्टॉर्म्स की पेशिंग हुई है। उधर वहाँ पे जो बरसातें आ रही हैं, हम उन लोगों से भी सिंपथाइज करते हैं। अल्लाह ताला उधर भी खैर आफियत करे, किस पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पे भी हुकूमतें कोशिश कर रही होंगी और हम उनके साथ हैं। अगर कोई हमारी तरफ से मदद की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे। मैं पार्टी लेवल पे बता दूं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल ही खैबर पख्तूनख्वा की, बल्कि पहले ही और कल फिर मेरे सामने बात की थी कि पार्टी के ओहदेदार जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बारिशों के बाद इलाके से पानी की निकासी नहीं की गई। मुजाहिरे में खवातीन भी शरीक हुई। दानियाल सैयद से तफसीलात जानते हैं। दानियाल, क्या अभी तक मुज़ाकरात नहीं किए गए मुजाहिरीन के साथ? जी देखिए, बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए पुलिस है और जो CVC के बोर्ड कैंटोनमेंट अथॉरिटी के जो हुकाम है वो मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात की अमली तौर पर उसको नजर नहीं आते, जब तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता दिनों भी एहतजाज किया गया था डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाका मकीनों की जानिब से। उनका कहना था कि हालिया बारिश के बाद जो सूरत हाल हुई, जो गंदगी इलाके में, जो कई फुट पानी जमा है इलाके में, उसकी निकासी आपके काम नहीं किया जा सकता। घरों के अंदर पानी दाखिल है और कई मतलब शिकायत करने के बावजूद, हजारों रुपए टैक्स देने के बावजूद इस पोश इलाके के अंदर की सूरत हाल है, जिसके बायस जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हुए। और इन मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता दिन जो FIR जो दर्ज की गई है उस FIR को भी वापस लिया जाए। दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कराची से वापसी पर जहाज में मुसाफिरों से घुल मिल गए। लोगों ने मियां शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी बनाई। तो आपको बता रहे हैं, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कराची से वापसी पर जहाज में मुसाफिरों से घुल मिल गए। लोगों ने मियां शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी बनाई। बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। दरियाए चनाब और सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अक्सर मकामात पर पानी आबादियों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेला खुशाब और रावलपिंडी के दरमियान राब्ता पुल बहा ले गया। शांगला में लैंड स्लाइडिंग से अक्सर राब्ता सड़कें बंद हो गई। मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों से दरियाओं की सतह बुलंद हो गई। पानी किनारों से बाहर आने लगा। दरियाए सिंध में लैया और तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आज 4,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला लैया से गुजरेगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर 38,000 और सखर बैराज के मकाम पर 23,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। दरिया के पानी से कच्चे के बहुत से देहात जेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। खुशाब में दरियाए चनाब का पानी किनारों से बाहर आ गया। सैलाबी रेला खुशाब और रावलपिंडी के दरमियान राब्ता पुल बहा ले गया, जबकि खुशाब मियां वाली रोड भी जेरे आब आने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। शांगला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग की वजह से ज्यादातर राब्ता सड़कें बंद हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत सड़कें बहाल करने में मसरूफ हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में फंसे पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुंच गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में फंसे पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुंचा है। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। दुरे नायाब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना के पेश नज़र जब वाघा बॉर्डर को बंद किया गया पाकिस्तान हिंदुस्तान के सरहद को, उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो भारतीय शहरों में फंस गए थे। दिल्ली में, कलकत्ता में, दीगर शहरों में जहाँ पे वो अपने अजीजों को मिलने गए थे वहाँ पे वो फंसे हुए थे। अब उनको मरहलावार लाया जा रहा था। आज भी वाघा बॉर्डर को उनके लिए खसूसी तौर पे 2 बजे के बाद खोला गया है और पहला ग्रुप जो है वो वाघा बॉर्डर अटारी इंडियन साइड से क्रॉस करके पहुंच गया। अब उनकी कागजात की जांच पड़ताल के बाद, उनके कोरोना टेस्ट को यकीनी बनाने के बाद उनको उनके घरों में, उनकी जगहों पे जाने की इजाजत दी जाएगी। जी दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। कोट अद्दू में दरियाए सिंध तोंसा बैराज के मकाम पर 72 घंटों तक सैलाबी रेले की आमद मुतवक्के है। तोंसा बैराज अपस्ट्रीम अब्बास वाला हिफाजती बंद पर बारिशी कटाव से गड़े पड़ गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैमूर अथर से। जी तैमूर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सिंध तोंसा बैराज के मकाम अब्बास वाला बंद पर। ये वो बंद है जो 2010 में टूटा था, जिससे पूरे पंजाब और सिंध के इलाके मुतासर हुए थे। इस वक्त ये सूरत हाल है कि दरियाए सिंध तोंसा बैराज के मकाम पर 72 घंटे अहम है। बताया ये जा रहा है कि 4.5 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजरेगा। इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये अब्बास वाला बंद शहरी आबादियों को बचाने वाला बंद है, लेकिन इस पर नाकस इंतजामात हैं। बारिशी पानी की वजह से इस बंद पर जगह जगह बड़े गड़े पड़ चुके हैं। अभी तक महकमा एरीगेशन इन गड़ों को पूर्ण नहीं किया गया। इस वक्त भी 3.5 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मजीद 4.5 लाख पानी का रेला भी इसी जगह से गुजरेगा। अभी तक इंतजामात नहीं किए गए, इन गड़ों को पूर्ण नहीं किया गया। पानी का जो रेला है उसकी वजह से ये गड़े इस जगह पर शगाब पड़ सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो इंतजामिया है वो हरकत में नहीं आई। फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए अब्बास वाला बंद 34 बुर्जी से लेके 31 बुर्जी तक जगह जगह पर दोनों अतराफ बंद के जो गड़े पड़े हुए हैं इनको पूरा किया जाए, ताकि फौरी तौर पे जो सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हो सके और जो सैलाबी रेला गुजरेगा उससे हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, नौशहर फेरोज में मिठानी के करीब दरियाए सिंध में 3 बहनें डूब गई। दादू से गोताखोर तलब कर लिए गए हैं। नौशहर फेरोज में पुलिस के मुताबिक मिठानी के करीब दरियाए सिंध पर फैमिली घूमने आई थी, जहां पांव फिसलने से दरिया में 2 शादीशुदा खवातीन और 10 साला बच्ची समेत 3 बहनें डूब गईं। ठट्ठा में झर के करीब गांव मोहम्मद खास खेली में बरसाती नाले में डूबकर 2 खवातीन जाँ भाग हो गईं। मकामी गोताखोरों ने दोनों लाशें निकाल लीं। तो आपको बता रहे हैं, ठट्ठा में झरक के करीब गांव मोहम्मद खास खेली में बरसाती नाले में डूबकर 2 खवातीन जाँ भाग हो गई हैं। मुकामी गोताखोरों ने दोनों लाशें निकाल ली हैं। दीरपाला में दरियाए पंचकोड़ा में 2 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। रेले में फंसे अफराद को सिविल डिफेंस के एहलकारों ने बचा लिया है। दीरबाला में दरियाए पंचकोड़ा में 2 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। रेले में फंसे अफराद को सिविल डिफेंस के एहलकारों ने बचा लिया। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, 2 अफराद हैं जो कि सैलाबी रेले में फंसे हैं, जबकि रेले में फंसे अफराद को सिविल डिफेंस के एहलकारों ने बचा लिया। सवात के इलाके बहरीन के शहरी अफसर खान ने सैलाब में फंसे कुत्ते की जान बचा ली। अफसर खान की कुत्ते को जान बचाने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अफसर खान का कहना है कि नमाज पढ़ने जा रहा था तो देखा कि एक कुत्ता दरिया की तरफ मौजूद है। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि तेज रफ्तार पानी में कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दूं। तो आपको बता रहे हैं कि सवात के इलाके बहरीन के शहरी अफसर खान ने सैलाब में फंसे कुत्ते की जान बचा ली। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द सजाएं पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ये फरमान कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं, ये बुनियाद है। हमने इसी के तहत मिल्ली यकजहती कौंसिल जो मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा साजिद अली नकवी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी और मैं आपका खादम, हम उसके बुनियादी मेंबर हैं। हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, हज़रत मौलाना ज़ियाउल कासमी, हमने वो मिल्ली यकजहती कौंसिल बनाई और उसके ज़ाब्ता इखलाक में ये बात लिखी जा चुकी है कि जो
अज़वाज मुतहरात, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, असहाब रसूल, अहले बैत, अइम्माए अतहार, हजरत इमाम महदी की तौहीन, तनकीस, तकफीर करे, हम सब उससे बरात का ऐलान करते हैं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस मुल्क के अंदर बनाते रसूल, अज़वाज रसूल या औलाद रसूल पे अपनी जुबान खोले। कानून मौजूद है, और जो लोग ये कहते थे कि कानून कहाँ है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मुल्क के अंदर 100 से ज्यादा अफराद तौहीन के ऊपर गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ सूबा पंजाब में मेरी इत्तलाआत के मुताबिक 23 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं और मुजरिम गिरफ्तार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कानून का रास्ता इख्तियार किया जाए, रियासत के साथ खड़ा हुआ जाए, तो उसके नतीजे में कानून की बालादस्ती होती है। और कानून की बालादस्ती का मतलब यह है कि अपने अपने अकीदे पे रहो, दूसरों के अकीदों से मत खेलो। कल इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर यौम अज़मत असहाब रसूल अहले बैत के तौर पे मनाया जाएगा, और उलमा, खुतबा, जाकिरीन, वाइदीन जुमा के खुतबात में असहाब रसूल अहले बैत की अज़मत और सदाकत को बयान करेंगे, और उसके साथ साथ मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से अवामुन्नास को आगाह करेंगे। हम सब मुत्तहिद हैं, कोई गलतफहमी में न रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस्लामाबाद में एक बदबख्त ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर, कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर तेरे ऊपर, उस दिन रावलपिंडी में ईदगाह शरीफ में एक बात कही गई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे मेराज पे, अल्लाह ने तमाम नबियों को जमा किया और इमामत का मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ताकि कायनात पे वाज़े हो जाए कि नबियों का इमाम कौन है। बोल दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाऊं मखातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि आपने अपनी जिंदगी पे अपने मुसल्ले पे किसको खड़ा किया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। बता दिया कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले के ऊपर सिद्दीक़ अकबर खड़ा होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई सिद्दीक़ अकबर को नहीं मानना चाहता, सिद्दीक़ अकबर को उसकी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, मत माने। लेकिन हमारे सामने सिद्दीक़ अकबर की तौहीन कोई करे, ये भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप ना मानिए। आप सैयदना अमीर मुआविया को नहीं मानना चाहते, मत मानिए। आप सैयदना, यार ये फोन बंद कर ले, कौन सा है, किसका फोन? सैयदना अबू सुफियान को नहीं मानना चाहते, मत मानिए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम तो जबरन किसी को मुसलमान करने के कायल नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, हज़रत शाह साहब, हम तो किसी को जबर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने के कायल नहीं हैं। सहाबा इकराम को मनवाने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।